Very good evening, all of you. Hope you all are doing well. Let's start with today's session. Now, in today's session, we are going to start with again one more important concept, that is arrays in JavaScript. Like in the previous session, we completed with strings. So, a lot of things about string we discussed, like what is string, how to create it, then different methods of string, searching method, case conversion methods, right? Or no, extracting, then trimming, padding, so many methods we learned. Similarly, there's one more concept called arrays, and now we have to discuss about arrays. So what is an array? You can say array is a collection of elements. Okay, array is a collection of elements and they all are ordered. Ordered meaning they have their positions and they are accessed on the index basis. Their index start with 0, 0, 1, 2, 3 going on. So in simple terms, you can say like it is a multi-valued variable, a variable which can hold many values in it. And all the values are ordered and each and every value is identified by a position called index. Get it? So in some languages, array are called as collection of homogeneous values. Array is a collection of homogeneous elements, or array is a collection of elements of same type. Okay, so here there is no type restriction, but the concept is same, that array is a multi-valued variable. You can say it's a single variable which can hold many values. All the values are stored in a continuous memory and every element is ordered. Each and every element is identified by a number, or you can say position, and that positions by default start with 0. Okay, so now how to create arrays in JavaScript, then how to traverse them, then what are different operations which you can do on arrays. Everything we will learn one by one. Okay, so first we'll just go through the definition. It doesn't come under primitive type, or you cannot call it as a scalar type. It's not a single value, it's a multi-valued variable. Get it? So many values and all are referred by a common name. You have many values and all these values, okay, are referred by some common name, whatever name you give, NOS. So everyone is referred by one common name. Then how to identify each value by an index? Everyone is going to have a position, 0 position, 1 position, 2. Therefore, it is ordered. Okay. So you can say an array is a special variable in JavaScript. Why special? Because it is not holding single value. It's not a scalar type like number, or you cannot call it as a boolean, which you have learned in the past. So it is a special type variable which can hold more than one value at a time. All the values are stored in continuous form. All the values are in continuous form. Every value is having an order. Every value is having a position called index, and all are sharing a common name. By that common name only you're going to access it. But how you're going to refer to each element? By the index. Correct? So it is an ordered collection of element. Ordered in the sense their sequence is important. Whatever elements you keep in the array, their sequence matters. First element, second element, third element. So that is the reason it is called ordered. Elements can be duplicate. There is no such criteria. You can have duplicate elements in it. But each and every element is identified by an index. So whenever any group type is accessed by an index, it is always ordered. Okay? Example I'm giving, like we have an array of fruits. So different fruits are there. The list of fruits I've created. Okay.
and every one is identified by a number 0, 1, 2, 3, 4. Okay, and all of them are getting accessed by a common name, and that common name is fruits. And how you access them individually by mentioning the index. See, fruits of 4 equal to grapes. So at fourth position, grapes is stored. If you're writing fruit equal to fruits of 0, so fruits of 0 is apple. So what will come in that fruit variable? Apple, like that. Getting? So a lot of applications are there of list. Example like list of comments on a Facebook post. Facebook फेसबुक पोस्ट क्या है, इंस्टाग्राम का पोस्ट क्या है, या ट्विटर का पोस्ट क्या है, एनी सोशल मीडिया के पोस्ट डालने पर लोग कमेंट करना शुरू करते हैं. तो इट इज अ सीक्वेंस ऑफ कमेंट्स, इज इट? तो यू कैन कॉल इट एज इट्स अ अरे, इट्स अ लिस्ट ऑफ कमेंट्स. या तुम्हारी प्लेलिस्ट होती है, सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट है, तो सॉन्ग्स इन अ प्लेलिस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? अरे ओनली, isn't it? So many examples, many other examples. List of running processes in your computer. In your computer, as many processes are running. So it is creating a list. So it is an array of processes, right? Okay. You are maintaining the names. You are maintaining the names of students. So names of student will form what? An array only. Okay. Now, what are the different ways of creating this array? We will be learning one by one. But the key characteristics, main things you have to remember, that it is ordered. Ordered means all the elements are going to be accessed by the position called index. Ordered in the sense their sequence is important. First element, second element, third element. तो उनका sequence बहुत important है. ईच एंड एवरी एलिमेंट को आप इंडेक्स के बेसिस पे एक्सेस करेंगे. इंडेक्स स्टार्ट विथ 0. डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो सकते हैं, कह रहे हैं, यह अरे ग्रो या श्रिंक हो सकता है. रन टाइम आप इसमें और एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, एलिमेंट डिलीट कर सकते हो. ठीक है, तो वो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. तो अरेज आर जीरो इंडेक्स्ड, मीन्स द फर्स्ट एलिमेंट is accessed by the position 0. Arrays can store multiple data type, which is generally not true in strict languages or static languages like C or Java. JavaScript ये loosely type है. Python, JavaScript, PHP, इसमें चल जाता है कि एक ही array में थोड़े values number है, थोड़े string है, थोड़े boolean values है, mix हो सकता है. बट एक्चुअली जो स्ट्रिक्ट टाइप लैंग्वेजेस होता है ना, लाइक सी है, और इफ यू कंसिडर जावा, देयर इफ यू क्रिएट अ अरे, द डेटा टाइप आल्सो इज टू बी मेंशन्ड दैट इट इज अ इंटीजर अरे, इट इज अ फ्लोट अरे. तो ऑल द एलिमेंट्स इन दैट अरे आर इंटीजर्स. नो सच हार्ड एंड फास्ट रूल हियर. जनरली जितने भी लूजली टाइप लैंग्वेज है उसमें ऐसा क्राइटेरियन नहीं होता है. तो अरेज कैन स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप्स. Okay, then they can dynamically grow or shrink. रन टाइम आप एलिमेंट्स ऐड करते जा सकते हो, डिलीट भी करते जा सकते हो. जैसे जैसे डिलीट करोगे उसका साइज श्रिंक होगा. ओके, एंड वेन एवर यू क्रिएट अ अरे, इट्स डेटा टाइप इज ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट. इट कम्स अंडर कैटेगरी ऑब्जेक्ट. Get it? So according to JavaScript, all arrays are of type object. राइट, एंड हम लोग उसका टाइप ऑफ प्रिंट करके देख सकते हैं ना. आई होप आपको याद है, आई होप यू रिमेंबर दैट, हाउ टू प्रिंट द टाइप ऑफ एनी variable. We have seen it so many times. I've shown you. X equal to 10 लिखते हो तो आप लिख सकते हो ना इधर टाइप ऑफ x. Does it print number? करेक्ट. तो सेम वे वेन एवर यू क्रिएट अरे, अभी अरे क्रिएट किया 10 20 30 40, एंड यहां आप लोग टाइप ऑफ ए प्रिंट कर रहे हो, इट प्रिंट्स ऑब्जेक्ट. तो अरेज आर ऑटोमेटिक ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट, ये याद रखना है. तो ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है. क्विकली देखते हैं हाउ टू क्रिएट अरेज.
डिफरेंट वेज है बाय यूजिंग अरे लिटरल, जो अभी मैंने दिया कि हार्ड कोडेड डायरेक्टली वैल्यू स्क्वायर में लिस्ट आउट करो. Then by using array constructor, then modern JavaScript, that is the later version के JavaScript ने कुछ methods दिए like array.off, array.from, okay, तो उससे भी array create कर सकते हैं. Okay, तो all ways I'll show you, don't worry. Method one, that is array literal, a common recommended way, a very simple way. No? Why? Because you just have to list out values in square bracket. Let A equal to, and they're saying in the square bracket, list out all your elements. Get it? So element one, element two, and when you're listing it, obviously they have to be separated with comma. So all the comma separated elements you'll list out in a pair of square bracket array is created. You can check the type of that A, which is object. ठीक है? तो ये सबसे easiest way हो गया. See, first in this case you have created a empty array. Here you have created an array of strings. Okay. Here it is an array of mixed type. Can you see? It is a number, then it is a string, then it is boolean, null. This is actually a object of the form key comma value pair. These are called a JSON concept, that is JavaScript object notation. So whenever you store in a key comma value pair, it's called as an object. So actually ये भी object है. तो array के अंदर भी क्या आएगा? Object आएगा. सिर्फ object का खासियत है, it access elements with the key and array accesses the element with the index. इतना ही फर्क है. array अपने elements कैसे access करता है? Index से. and ये object कैसे access करता है? with the help of key. but ultimately दोनों का type क्या होता है? Object, according to JavaScript. So all combinations you can make. You can create an empty list. You can create a list of same type. You can create listening array of mixed type. सब कुछ possible है. ठीक है? See, let a equal to. I'm creating an integer, then in between string, in between float. ठीक है? Now float and means this floating and this both are numbers only. Doesn't matter. Boolean. array में array भी हो सकता है. ठीक है? array में object भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी दिया, like name colon comma age colon की के लिए डबल कोट नहीं, की डायरेक्टली राइट, एज 45. इस तरह से आप लोग लिस्ट क्रिएट कर सकते. सॉरी, यू कैन क्रिएट अ अरे. यू कैन प्रिंट एंड सी दिस अरे. ठीक है? इट इज डिस्प्लेइंग ऑल द वैल्यूज. ये वापस एक अरे है. ये अगेन एक ऑब्जेक्ट है. ओपन करके देख सकते हो. 0 पे 1 है, 1 पे राम है, 2 पे 4.5, फिफ्थ प्लेस पे अगेन एक अरे है, सिक्स्थ प्लेस पे एक ऑब्जेक्ट है. कैन यू सी? ठीक है? everyone is of type array only. Yeah? ultimate sorry of type object. Ultimately everyone come under category object. ठीक है? अगर type of एक print कर दे, it will print it as object. Now how to access them and all, I'll tell you, don't worry. But ये first way था. This was the first way of creating an array. Second is by using array constructor. Like new and फिर यहाँ array constructor and round bracket में list of values दे सकते हो. So it creates a array from these values and give you that array object. वो array object आ जाए. Constructor means a magic function. Constructor means एक function होता है जो automatic call होता है for initialization. Correct? Initialization करने का काम किसका होता है? Constructor. अब ये constructor में भी काफी ways है, देखो. Like
if you are giving nothing in that round bracket, it will create an empty array. If you are passing a number, then it will create an array of only that many slots, but all will be empty. And if you pass values, it will create an array from those values. मीन्स देखो एक ही चीज से कितने अलग अलग वेज है. ठीक है. आई एम राइटिंग न्यू अरे A. It's creating an empty array. Can you see? Then A2 equal to new array, and I'm passing a number. It will create an array of this much size. देखो. Is it creating an empty array? Empty values means 0 place, 1 place, 2 place, सब कुछ blank है, and size 5. ठीक है. And you can create an array by directly passing values to it. तो उसको जो भी values आप भेजोगे, getting? A3. Is it creating an array of these 3 elements? ओके. तो ऐसे अलग अलग वेज है अरे क्रिएट करने का. तो ये सेकेंड वे है बाय यूजिंग अरे कंस्ट्रक्टर. एक्चुअली इट्स अ मैजिक फंक्शन, ऑटोमेटिक कॉल होता है. इट इज लाइक एलोकेटिंग मेमोरी, एंड आफ्टर एलोकेटिंग मेमोरी automatically it will call this function for initializing that memory. So here empty array, here it will create an array of 5 size, all empty. Here it will create an array and initialize it with this ram, green, red, green and blue. ये values से initialize करेगा. ठीक है. फिर 2015 के बाद जो ECMS स्टैंडर्ड का जावास्क्रिप्ट है, जिसको हम ES6 कहते हैं. ओके. तो ES6 एंड बाद में बाकी के वर्जन्स है अवेलेबल. तो they have given one method called off, array.off. And here you have to pass elements. So it will create an array of those elements. Array.off. This is somewhat copied from Java. Like Java के Java streams पड़ा रहेगा, Java streams में भी ये सब concepts available है. तो array.off and pass the list of value. From these elements, it will create array. And from भी होता है, but from means you are creating an array from some another array or array like object. एक कोई array like object है या एक array है, तो एक array से दूसरा array. It is like a copy constructor हम कह सकते हैं. Get it? तो ये वाला भी दिखा देता हूं पहले. Let A4 equal to array dot off, and you can pass values to it. 10 है, 20 है, 30 है, 40, 50. A4 print करके देखो. Is it creating an array of those 5 values? ठीक है. So that is off. And from means you have to give a array like object, and from that array like object it will create a new array. See, array dot from, and you are giving a string. तो string भी allowed है क्योंकि string is also a sequence, guys. String भी एक क्या है? Sequence. तो it will take HELLO ऐसे 5 letters, and ये letters से क्या बनेगा? एक array बन के आएगा. The from method कब use करना है? When you want to create an array from some another array like object. और एक कोई array like object है उससे. तो string भी एक array like object है ना. It is a sequence of characters. Get it? तो example देखो, already we have A4. You can create from that A4 another array like this, array dot from, and you can pass A4. यहां मैं A5 कर देता हूं. ठीक है. And now if you print and see A5, is it same? So it has created an array from whose elements? ये एक कॉपी कंस्ट्रक्टर जैसे कि आपके पास ऑलरेडी एक अरे है, उसका एक कॉपी बना के दिया, एक डुप्लीकेट बनाया. क्लोन, उसको हम क्लोन कहते हैं, क्लोन. So it has taken elements of A4
And from A4 element, it has created another copy array, and that copy array is created. Understanding? Clear? It's not like from one array, another array. Array like object, as I said. So like if I'm creating A6 equal to array dot from, and if I give string, no problem, because string भी एक array like ही है. String भी sequence है. इसको character by character access कर सकते हो, which we have seen in the last session. Don't worry. मैंने last के topic arrays में हमने ये पढ़ा हुआ है. A6. Can you see? HELLO ऐसे 5 characters का एक array बना के दिया. ठीक है? So these are different ways by which you can access elements of access elements नहीं, you can create an array in JavaScript. So first way is by array literal, directly square bracket में list out करो. Second is by array constructor. Third is by using of method, and fourth is by using from method. ठीक है? And ये array object already provided है. JavaScript ने ये array object already दिया है, तो उसके हम methods use कर रहे हैं. That is of, from. Get it? Now, next we have to see how to access elements of that array. Array तो बन गया, अभी उसके एक एक करके elements कैसे access कर सकते हैं? So you can access the elements of array by just writing array name square bracket index. Okay, so whichever element is at that index, it will give you that element. Very simple. Array name square bracket index. ठीक है? देखो, let colors equal to. This is the easiest way of creating an array, as I said. तो आप लोगों ने पहले एक array create किया. You are writing colors of 0. Who is there at 0th place? Because already I have told you, indexes start with 0. 0, 1, 2, 3. Understanding? ठीक है? तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है. तो अगर मैं लिख रहा हूं colors of 0, तो who is at 0th place? Red. It will give you that. Colors of 2. तो 0, 1, 2. Who is at 2th place? Blue. Colors of colors dot length. तो हर एक अरे को एक लेंथ प्रॉपर्टी होती है. हर एक अरे, because internally it's an object, so it will have a length property, and length property contains the total number of elements in it. तो इसमें total elements कितने? 4. तो colors dot length कितना आएगा? 4. 4 minus 1 कितना आएगा? 3. Now colors of 3 क्या है? Yellow. It will return yellow. Getting, guys? So this way you can access the elements of array. Okay? Yes or no? To quick confirmation you can give, guys. फटाफट confirmation दे सकते हो. यस सर। एक बार ये लेंथ वाला मेरे को थोड़ा सा जानना था। Pardon? हाँ वो लेंथ -1 है ना, तो इंडेक्स हाँ बेस से अगर हम लोग करेंगे तो येलो आ रहा है, बट अगर हम लोग लेंथ वाइज देखेंगे तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 4 तक आ रहा है। नहीं, अच्छा बट दिस इज लेंथ मीन्स ओनली द काउंट. लेंथ जो होता है ना, वो काउंट होता है. काउंट कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट. -1 अगर लेंथ, करेंगे लेंथ में तो हम लोग का 3 आ जाएगा। तो हाँ तो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो तीसरे नंबर पे येलो। ठीक है। राइट, 0, 1, 2. Correct. Length considers the number of element. तो total element कितने हैं? 4. So it will give you 4. अब 4 minus 1 कितना है? 3. अब colors of 3 पे कौन है? Yellow है. Because indexing starts with 0. Right? राइट। Then modifying array elements. अगर आपको array के elements को change करना है, तो you can modify. ठीक है? How to modify? Very simple. Just आपका array name square bracket index equal to value, whatever the value is. So whatever value is there at that index previously will be replaced with this new value. ठीक है?
तो वेरी सिंपल, जैसे एक्सेस करते समय हमने अरे स्क्वायर ब्रैकेट इंडेक्स लिखा है, तो वही सिंटैक्स बट इक्वल के लेफ्ट साइड एंड इक्वल के राइट साइड वैल्यू रहेगा। देखो, लाइक दिस इज अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, मैंने लिखा है फ्रूट ऑफ वन इक्वल टू मैंगो, fruit of 1 equal to mango. Indexing starts with 0. So 0, 1. Who is at one place? Banana. So that banana is getting replaced with mango. And if you print and see the array, array अगर print करके देखा तो देखो one place पे भी mango आ, but in this case if you go beyond the limit, getting, so what it does is it automatically adds it, जितने भी एलिमेंट पहले से है उसके लिमिट के बाहर गए तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, वो एलिमेंट ऐड करेगा। देखो जैसे फ्रूट्स ऑफ थ्री, तो 0, 1, 2, 3 तो था ही नहीं, इट हैज जस्ट एडेड इट, वो नया ग्रेप्स उसमें क्या हो गया, ऐड हो गया। ओके, तो वैसे भी पॉसिबल है। ओके, सी लेट a equal to, I'm taking 10, 20, 30, 40, 50 लिखा हुआ, a of 0 equal to 100 लिखता हूं, एंड नाउ इफ आई प्रिंट एंड सी a, तो जीरो प्लेस पे कौन है, 10, वो भी 100 से रिप्लेस हुआ। बट इफ आई राइट a ऑफ 10 इक्वल टू 1000, ठीक है, नो प्रॉब्लम, 0, 1, 2, 3, 4, अभी 10th पोजीशन था ही नहीं तो वो ऐड कर देता है। देखो, एंड ऐड करते समय भी वो 10th पोजीशन था, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एम्प्टी रखा और 10th प्लेस पे ये 1000 जाके रखा, तो बीच में कितने पोजीशंस एम्प्टी गए, 0, 1, 2, 3, 4, ये गए, तो 5, 6, 7, 8 एंड 9, 5 लोकेशंस एम्प्टी एंड 10th पोजीशन पे 100 रखा है, तो ये भी पॉसिबल है। जैसे इस केस में तो ठीक है कि आपने कंटिन्यूएशन ही दिया 3, तो 0, 1, 2 और 3 दिया तो 3 ग्रेप्स यहां ऐड हुआ, बट ये 3 के जगह पे अगर मैंने 5 दिया रहता था, करेक्ट, तो 0, 1, 2, ओके, 3 एंड 4 पे एम्प्टी आएगा एंड फिफ्थ प्लेस पे ग्रेप्स जाएगा, अंडरस्टैंडिंग, तो दैट रूल ऑल्सो यू शुड रिमेंबर, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। व्हेन वी विल लर्न the concepts we learn and then we try to solve the exercises, तब वो ऑटोमेटिक आपको समझ में आता है कैसे इसका एप्लीकेशन करना है। फर्स्ट बेसिक थिंग, यू नीड टू नो द कोर थिंग्स, हर चीज के लिए डायरेक्टली प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस नहीं होते हैं ना। स्कूल्स में भी हम जब टेक्स्ट बुक पढ़ते थे तो पहले डेफिनेशंस एंड ऑल दोस थिंग्स, बेसिक एग्जांपल एंड फिर एक्सरसाइज सॉल्व करने जाते थे, राइट, तो यहाँ भी वैसी है, पहले आपको कंसेप्ट समझ लेना कि अरे क्या है, अरे कैसे क्रिएट होता है, अरे के वैल्यूज कैसे एक्सेस होते हैं, अरे को मॉडिफाई कैसे करना है, एंड फिर इनको यूज करके जब आप एक्सरसाइजेस सॉल्व करोगे, ऑटोमेटिक यू कम टू नो कि वो एक्सरसाइज सॉल्व करते समय कहाँ क्या यूज करना है, करेक्ट, तो दैट इज द स्किल, वो स्किल इंडिविजुअल को है, वो हर एक चीज बताया नहीं जा सकता है, इट इज टू बी डेवलप्ड and that development is to be done by solving abundant of exercises, lot of MCQs, बहुत सारे MCQs सॉल्व करते हो, बहुत सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हो, तो आपको ऑटोमेटिक बहुत सारे ट्रेस आउटपुट क्वेश्चंस होता है, तो वो खुद ही आपको वो एक्सपर्टाइज मिलना शुरू होता है, करेक्ट। नेक्स्ट इज अ लेंथ प्रॉपर्टी, रिमेंबर एवरी अरे व्हेनेवर यू क्रिएट, कभी भी जब अरे क्रिएट होता है तो उसको इंटरनली एक लेंथ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी मीन्स इट इज अ फील्ड, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक, इट्स अ डेटा मेंबर, वो उसका डेटा मेंबर है, मेथड नहीं है ये, इसमें वैल्यू स्टोर हो सकता है, यू कैन स्टोर सम वैल्यू। सो लेंथ कंटेन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन योर अरे, आपके अरे में कितने एलिमेंट्स है वो काउंट देता है। जैसे इस केस में देखो,
यहां 5 स्लॉट एम्प्टी भी है तो भी लेंथ 11 ही लेगा. करेक्ट. सी a dot length. Does it print 11? It will count that empty slots as well. ठीक है. See. तो returns the number of elements in an array. यह फर्स्ट केस आप देख सकते हो. पहले केस में क्या किया? Let numbers equal to numbers dot length. How many elements are there in this first case? 5 element. It has printed. इसमें क्या कर रहा हूं? जो लेंथ है उसी प्लेस पे नया वैल्यू डाल रहा हूं. इधर देखो, लेंथ मीन्स द काउंट. लेंथ जीरो से शुरू नहीं होता है. लेंथ मीन्स कितने एलिमेंट है. इंडेक्स जीरो से शुरू होता है. तो अभी बताओ, जब मैंने लिखा है नंबर्स डॉट लेंथ, तो कितना आएगा? 5. 5 एलिमेंट्स है ना इसमें. अभी नंबर्स ऑफ 5 पे 50 रखेगा. तो नंबर्स ऑफ 5, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो 5 पे 50 नहीं, 60 रख देगा. एंड इफ यू प्रिंट एंड सी, देखो वहां 60 आ गया. एंड आप ये लेंथ मॉडिफाई भी कर सकते हो. इट इज नॉट फाइनल लाइक जावा. जावा में भी अरे बनते हैं, तो जावा के अरे में भी लेंथ प्रॉपर्टी होता है, बट वो फाइनल होता है. मीन्स उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो. कॉन्स्ट होता है वो. यहां कॉन्स्ट नहीं, ये चेंज कर सकते हो. देखो, अगर चेंज किया तो अरे का साइज श्रिंक हो जाएगा. इट विल श्रिंक द अरे साइज. नंबर्स डॉट लेंथ इक्वल टू 3. तो आपका अरे का साइज रिड्यूस टू 3 कर दिया उसने. तो ये बाकी के एज गुड एज डिस्ट्रॉइड. डिस्ट्रॉइड बोलो या फ्रीड है. मीन्स वो मेमोरी फ्री है. भले उसके अंदर वैल्यू रहेगी 40, 50, 60, बट वो मेमोरी फ्री हो चुकी है. करेक्ट. मीन्स दैट मेमोरी कैन बी रीयूटिलाइज. ओके. तो ऐसे लेंथ को अगर न्यू वैल्यू दे दिया, तो आपका अरे का साइज क्या हो सकता है? चेंज. हाँ, अगर 3 की जगह पे मैंने अगर 10 किया रहेगा, तो न्यू एम्प्टी स्लॉट ऐड होगी. इट विल ऐड सम एम्प्टी स्लॉट. करेक्ट. आई शो यू. लेट a इक्वल टू, ठीक है, ये एक अरे है. तो a डॉट लेंथ इज हाउ मच? 5. a ऑफ a डॉट लेंथ इक्वल टू 60 कर देता. याद रखना, लेंथ मीन्स द काउंट. हाउ मच काउंट इज देयर? 5. तो a ऑफ 5 पे 60 रखेगा. a ऑफ 5 किधर आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो ये इसके बाद है. ठीक है. यू कैन प्रिंट एंड सी 60 एडेड है. a डॉट लेंथ अगर चेक करोगे तो अभी वो 6 हो चुका है. If I make a dot length as 10, it will add empty slot. Can you see? 4 empty slot ऐड किए. या अगर a dot length में reduce कर देता हूं to 3, ठीक है, तो वो 40, 50, 60 एंड empty slot सब फ्री हो जाएगा. Can you see? It is reduced. तो इस तरह से आप लेंथ के साथ भी खेल सकते हैं. मैंने लेंथ को मॉडिफाई कर सकते हैं. यू कैन एक्सेस दैट लेंथ. यू कैन यूज दैट लेंथ टू अपेंड एनी वैल्यू. कोई भी वैल्यू अपेंड करनी है तो हमेशा लेंथ पे जाके नया वैल्यू स्टोर करो. लेंथ के पोजीशन पे नया वैल्यू स्टोर हुआ तो वो अपेंड ही होने वाला. अपेंडिंग मीन्स यू अंडरस्टैंडिंग. एडिंग एट द एंड. अपेंड एंड प्रिपेंड. प्रिपेंड मीन्स आगे अटैच करना, उसको प्रिपेंड कहते हैं. ठीक है. तो होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू. राइट. तो लेंथ प्रॉपर्टी भी क्लियर है. नेक्स्ट इज इफ यू वांट टू ऐड एलिमेंट्स और रिमूव एलिमेंट, तो फॉर दैट ऑल्सो दे हैव गिवन सम प्रोविजन लाइक पुश एंड पॉप. ऐसे मेथड्स है अरे के. एस अरे इंटरनली ऑब्जेक्ट है तो उसके अपने मेथड्स भी रहेंगे. इट विल हैव इट्स ओन मेथड. तो पुश एंड पॉप इज देयर एंड शिफ्ट एंड अनशिफ्ट इज देयर. ओके. फर्क क्या है वो बताता हूं. Like if you're using push and pop, so it will add it at the right end and remove from the right end. This is your array. Okay, so to add from the right end, we will use push. To remove any element from the right end, we use pop.
Same way, if you want to add in the beginning, then they have given unshift. Okay? And from the beginning, if you want to remove, they have given shift. तो ऐसे शिफ्ट अनशिफ्ट पुश पॉप ऐसे मेथड्स है, अभी दोनों एंड से कर सकते हो, इसलिए जावास्क्रिप्ट का अरे एज अ डबल एंडेड क्यू की तरह ट्रीट कर सकते हो. यू कैन ट्रीट इट एज अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर. आई होप यू शुड नो इट. तो इट कैन बी यूज लाइक अ डबल एंडेड क्यू. डबल एंडेड मीन्स दोनों एंड से पुश पॉप, दोनों एंड से पुश पॉप हो सकता है. ठीक है. तो ऐसे कुछ मेथड्स है. तो उसमें फर्स्ट है पुश. इट इज टू ऐड वैल्यू एट द एंड. एंड में ऐड करता है हमेशा. सी, दिस इज योर फ्रूट्स. लेट फ्रूट्स इक्वल टू, दिस इज योर अरे ऑफ टू फ्रूट्स. यू आर राइटिंग फ्रूट्स डॉट पुश ऑरेंज. तो पुश ऑलवेज कहां ऐड करेगा? एंड पे. उसका नेचुरल बिहेवियर ही वो है कि पुश ऑलवेज एड्स एट द एंड. यू कैन ऐड मल्टीपल वैल्यूज ऑल्सो गाइस. मल्टीपल वैल्यूज है तो मल्टीपल वैल्यूज पास करो. fruits dot push जितने वैल्यूज. दिस इज कॉल्ड एज वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट. कुछ याद है फंक्शंस पढ़ा था? भूलो मत. जब फंक्शंस का टॉपिक पढ़ा तब पैरामीटर पासिंग कंसेप्ट बताया था. तो उसमें पोजिशनल कंसेप्ट पढ़ा. 1:1 करस्पॉन्डेंस. ज्यादा हो गए तो क्या होता है, कम हो गए तो क्या हो गया. कम रहेंगे तो वो एक्स्ट्रा अनडिफाइंड है, ज्यादा रहेंगे तो इग्नोर होता है. वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, सब पढ़ा है प्लीज. ठीक है. यू हैव टू कीप रिवाइजिंग ऑल्सो एवरीथिंग व्हाट इज taught in the past. Otherwise, like when the course is over, at the end again you'll say कुछ याद नहीं है. तो why? Because you're not keeping yourself updated, right or no? My work is to deliver. Your work is to keep yourself updated. तो मल्टीपल वैल्यूज, इसको हम वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं. तो चाहिए उतने आर्ग्यूमेंट्स भेजो. ऑल दीज वैल्यूज आर एडेड एट द एंड. सी मैंगो, ग्रेप्स. यू कैन प्रिंट एंड सी दैट. ठीक है. चलो यहां मैं कुछ और बनाता हूं. लाइक नेम सी लेते हैं. ऑलरेडी वी हैव राम, सीता, गणेश. तो नेम्स डॉट पुश अगर लिखा मैंने, ओके, एंड आई एम एडिंग लक्ष्मण. नाउ कैन यू सी इट रिटर्न्स यू द न्यू. पुश हमेशा क्या रिटर्न करेगा? न्यू लेंथ. ओके. नेम्स प्रिंट करो. देखो लक्ष्मण एडेड. मल्टीपल भी पास कर सकते हो. तो पुश एंड मल्टीपल वैल्यूज दिया लाइक भरत, कृष्ण. ठीक है. तो 3 वैल्यूज एट द एंड ऐड हो गए. तो नया लेंथ कितना बन गया? 7. तो पुश ऑलवेज रिटर्न्स द न्यू लेंथ ऑफ योर अरे. बट पुश ऑलवेज कहां से पुश करता है? एंड से. ये इसकी खासियत है. ओके. इट ऑलवेज एड्स एट द एंड. देन वी हैव पॉप. पॉप ऑलवेज कहां से रिमूव करेगा? एंड से. एंड वॉट एवर एलिमेंट इट हैज डिलीटेड, इट विल रिटर्न दैट डिलीटेड एलिमेंट. करेक्ट. देखो लेट फ्रूट्स इक्वल टू, ये अपना फ्रूट्स है, फ्रूट्स डॉट पॉप. तो इट इज गोइंग टू रिमूव ऑरेंज. एंड जो एलिमेंट डिलीट हुआ है वो रिटर्न करता है. वो रिटर्न किया है तो वो मैंने वो एक वेरिएबल में कलेक्ट किया एंड प्रिंट किया. इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली प्रिंट इट. फ्रूट्स डॉट पॉप डायरेक्ट यहां प्रिंट कर सकते हो. एंड अगर आपने अभी लिस्ट चेक किया तो उसमें एक वैल्यू कम दिखेगा. गेटिंग गाइस? जैसे अभी ये अपना नेम्स की लिस्ट है एंड मैंने लिखा अभी नेम्स डॉट पॉप. ठीक है. तो हु इज डिलीटेड? द लास्ट वैल्यू, दैट इज गोपाल. नाउ इफ यू चेक, नेम्स में एक वैल्यू कम है. वापस नेम्स डॉट पॉप लिखा, लास्ट वैल्यू डिलीट किया. डिलीटेड वैल्यू रिटर्न करता है. पॉप ऑलवेज रिटर्न्स द डिलीटेड वैल्यू. करेक्ट. एंड नाउ इफ यू चेक नेम्स, इसमें से कृष्णा चला गया. तो ये पुश पॉप, शिफ्ट अनशिफ्ट,
यूज करना पड़ता है, लाइक दे में से लाइक चेक वेदर योर अरे इज अ पैलिंड्रोम और रोटेट करने के लिए कह रहे हैं, तो रोटेट अरे, ये कॉमन लिट कोड प्लेटफॉर्म पे कभी क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि नहीं? इफ यू आर प्लानिंग टू ज्वाइन सम बिग एमएनसीज लाइक मैन फैन कंपनीज, तो आपको लिट कोड प्लेटफॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। उस प्लेटफॉर्म पे ऐसे क्वेश्चन, रोटेट योर अरे, तो अरे रोटेट करना है तो फिर क्या यूज करना पड़ेगा? यहां से पॉप एंड यहां से अनशिफ्ट, अनशिफ्ट यहां से ऐड करता है, पुश एंड पॉप, पुश पॉप फ्रॉम द राइट एंड एंड शिफ्ट अनशिफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, वैसा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो नाउ व्हेन आई प्रिंटेड, वो एक एलिमेंट इसमें से कम हो चुका है, right? Then as we use push to add element from the right end, same way if you want to add element from the left end, means from the beginning. So from the beginning, if you want to add any element, you have to use unshift. Unshift add करता है, shift निकालता है, नहीं तो बहुत लोगों को confusion रहता है। Unshift always adds the element at the beginning. कॉन्सेप्चुअली सेम है, सिर्फ बिगिनिंग में होगा, उतना ही है। यहां भी मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हो, वो सब पता है आपको। ठीक है, देखो, लेट फ्रूट्स इक्वल टू बनाना एंड ऑरेंज, फ्रूट्स डॉट अनशिफ्ट एप्पल, तो वेयर इज एप्पल एडेड? इन द बिगिनिंग। इफ यू प्रिंट एंड सी द लिस्ट, यू कैन गेट दिस। मल्टीपल भी होता है इसमें, मल्टीपल भी ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड मल्टीपल एज वेल। नेम्स डॉट अनशिफ्ट, अब मैं ये नेम्स में ही मैं ऐड कर देता हूं, लाइक मोहन ऐड किया। ठीक है, एंड नाउ इफ यू सी नेम्स इन द बिगिनिंग, और अगर मैं अनशिफ्ट करके मल्टीपल वैल्यू ऐड करता हूं, ठीक है, राधा इज देयर एंड मीरा इज देयर। नाउ नेम्स, कैन यू सी? तो राधा एंड मीरा, तो पहले उसने राधा ऐड किया एंड फिर मीरा, किधर ऐड किया? बिगिनिंग में, इन द बिगिनिंग, इन दोनों को कहां ऐड किया? बिगिनिंग। ओके, एंड सेम वे बिगिनिंग से एलिमेंट रिमूव करने रहेंगे। इफ यू वांट टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग, देन वी हैव शिफ्ट। डोंट कंफ्यूज विद अनशिफ्ट शिफ्ट। अनशिफ्ट पुट्स इन एंड शिफ्ट रिमूव्स, बट शिफ्ट रिमूव हमेशा कहां से करेगा? फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। ठीक है, सी, लेट फ्रूट्स इक्वल टू, दिस इज योर array of fruits, fruits dot shift, fruits dot shift, will it remove one value? कहां से? बिगिनिंग, तो एप्पल निकल गया। प्रिंट करके देखो क्या रिमूव हुआ है, एंड अरे देखो, अरे में एक एलिमेंट कम रहेगा। ठीक है, देखो जा, नेम्स डॉट शिफ्ट, आई एम राइटिंग, इज इट रिमूविंग दिस वैल्यू राधा? वापस अगर शिफ्ट कहा तो फिर मीरा निकलेगा, वापस शिफ्ट कहा तो मोहन निकलेगा। एंड नाउ इफ यू प्रिंट एंड सी, तो वो राधा मीरा मोहन निकल गए, तो इतने वैल्यूज ही इसमें रह गए। ठीक है, एक तो डाउट आ रहा है इसमें कि हाँ, हम लोग पैरामीटर दे करके शिफ्ट नहीं कर सकते और पॉप भी। शिफ्ट को पैरामीटर नहीं, इट इज बाय डिफॉल्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली, नेम्स डॉट शिफ्ट, उसको पैरामीटर है ही नहीं, क्योंकि ओके। शिफ्ट, शिफ्ट ऑलवेज पहले के लिए ही बनाया गया है ना। पैरामीटर देके इट इज देयर इन सम लैंग्वेजेस, लाइक पाइथन में हम लिख सकते हैं डॉट पॉप एंड थ्री, तो वो थर्ड पोजीशन का डिलीट करता है वैसे, बट हियर इट और इज, हाँ, पॉप में भी सेम होगा ना, नहीं हो सकता? pop is made only that it is supposed to remove from the last, उसको लास्ट का ही रिमूव कराने के लिए बनाया गया, टू रिमूव फ्रॉम द लास्ट एंड टू रिमूव फ्रॉम द बिगनिंग। हाँ, अभी आप कहोगे कि मुझे स्पेसिफिक डिलीट करना है, तो कुछ प्रोविजन है क्या? यस, उसके लिए भी अलग प्रोविजन है। ये जो दो मेथड्स बताए, दो एंड दो मीन्स पुश एंड पॉप एंड अनशिफ्ट एंड शिफ्ट,
वो स्पेसिफिकली किसके लिए ही थे? ये आपका अरे है, तो राइट एंड से ऐड करना है एंड राइट एंड से ही रिमूव करना है, तो ये पुश एंड पॉप। एंड बिगिनिंग में ऐड करना है तो अनशिफ्ट एंड शिफ्ट। स्पेसिफिक अगर रिमूव करना रहेगा तो देयर आर सम अदर वेज, नॉट बाय दिस वे, ठीक है? हाँ समझ गए। हाँ, कुछ लैंग्वेजेस में है ऐसे, लाइक जैसे पाइथन है, तो उसमें एल डॉट पॉप 3 लिखा, तो पॉप को आप इंडेक्स भेज सकते हो, पॉप को इंडेक्स भेज सकता है, तो वो उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो डिलीट होता है। एंड उधर पॉप को कुछ नहीं पास किया तो वो बाय डिफॉल्ट लास्ट। तो ऐसे नहीं है, इधर जावास्क्रिप्ट का यही रूल है, ठीक है? एंड इफ यू वांट टू ऐड, और ये अभी हमें डिटेल अलग से ही अगले लेक्चर में पढ़ा, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन बहुत इलोंगेट होगा। तो that splice is basically for adding values or replacing values or deleting values. मीन्स अगर ये आपका अरे है, तो अरे में एलिमेंट्स है, तो बीच में कुछ नए एलिमेंट्स इंसर्ट करना है। ये मेरा एक अरे है, तो इसके सारे एलिमेंट इस जगह पे इंसर्ट, तो वो सब शिफ्ट हो जाएंगे और ये वैल्यूज यहां चले जाएंगे। वन, इंसर्टिंग। सेकेंड, इस अरे में some elements I want to replace with these elements। माने कुछ एलिमेंट है एक पोजीशन से लेके दूसरे पोजीशन पे, जितने एलिमेंट है उनको ये अरे के एलिमेंट से रिप्लेस कर देना, तो वो भी पॉसिबल है, करेक्ट? तो रिप्लेसिंग पॉसिबल है, इंसर्टिंग पॉसिबल है, डिलीटिंग भी पॉसिबल है। मीन्स उतने एलिमेंट्स को किसी से भी रिप्लेस नहीं किया तो वो श्रिंक हो जाएगा, वो उतना पार्ट क्या हो जाएगा, you're not replacing it with anything, तो that much part will get shrink, तो आपका अरे क्या हो जाएगा, श्रिंक हो गया, मीन्स डिलीट हो गया। तो तीनों काम कर सकते हो, इंसर्टिंग, डिलीटिंग एंड रिप्लेसिंग, बाय ओनली वन फंक्शन, दैट इज स्प्लाइस। ओके, तो वो स्प्लाइस का एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं अगले सेशन में बताऊंगा आप लोगों को। बट इसमें क्या क्या किया जा सकता है बाय स्प्लाइस? यू कैन ऐड वैल्यूज, यू कैन डिलीट वैल्यूज एंड यू कैन रिप्लेस ऑल्सो। ठीक है, चलो क्विकली देख लेते हैं, एग्जांपल्स नहीं पॉसिबल हुए तो नेक्स्ट टाइम देखेंगे। ओके, सी। तो स्प्लाइस को अगर आपने सिर्फ स्टार्ट एंड एंड दिया, ओके, तो स्टार्ट एंड एंड नहीं रहता, ये स्टार्ट एंड ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। टू द स्प्लाइस फंक्शन, स्लाइस एंड स्प्लाइस दो अलग फंक्शन होते हैं, ऐसा स्लाइस नाम का भी एक फंक्शन है अरे में। तो दिस इज योर ओरिजिनल अरे, क्विकली आई टेल यू। फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस 1, 2, तो 1, 2 मीन्स 1 से 2 तक नहीं, 1 से 2 एलिमेंट। देखो, 0, 1, 2, 3, तो 1 से कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट, ठीक है? तो 1 से लेके एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, तो वो जो 2 एलिमेंट्स है वो रिमूव हो जाता है, क्योंकि आपने रिप्लेसमेंट नहीं दिया है, किससे रिप्लेस करना है वो बताया नहीं। तो व्हेन यू डोंट गिव एनी रिप्लेसमेंट, इट इज डिलीटिंग, आपका अरे श्रिंक हो गया, ये वैल्यूज चले गए एंड अरे में अभी एप्पल एंड मैंगो रह गया। गेट इट? ये एक है। सेकंड, आपने स्टार्ट दिया बट लेंथ नहीं दिया, लेंथ अगर 0 देता है तो इंसर्टिंग का काम करेगा। देखो, स्टार्ट कहां से कर रहे हो, 1 से, एंड लेंथ कितना दिया है, 0। दिस सेकंड इज लेंथ, रिमेंबर, फर्स्ट इज स्टार्ट, सेकंड इज लेंथ। ओके, यहां भी देखो, स्टार्ट इज 1 एंड लेंथ इज 2, तो फ्रॉम 1 हाउ मेनी एलिमेंट, 2 एलिमेंट, फ्रॉम 1 2 एलिमेंट्स, तो 1 से 2 एलिमेंट क्या बनता है, बनाना एंड ऑरेंज, ये 2 एलिमेंट किसी से भी रिप्लेस नहीं हो रहे, तो वो श्रिंक हो गया, अरे रेड्यूस हो गया। बट यहां देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 0, 1, अभी ये मॉडिफाइड अरे ये है ना, 2 वैल्यू चले गए, तो दिस इज योर मॉडिफाइड अरे। अरे मॉडिफाई होता है, अरे इज म्यूटेबल गाइस, अरे चेंज हो सकता है, तो 0 पोजीशन, 1 पोजीशन, बट फ्रॉम 1 हाउ मेनी एलिमेंट, 0 एलिमेंट, लेंथ कितना दिया आपने, 0,
तो कितने एलिमेंट रिप्लेस हो गए? 0 एलिमेंट रिप्लेस। किससे? ग्रेप्स एंड कीवी। तो इस जगह पे ग्रेप्स कीवी आएगा और मैंगो आगे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां कितने एलिमेंट रिप्लेस हो रहे हैं? नो एलिमेंट आर रिप्लेस्ड विथ ग्रेप्स एंड कीवी। तो ग्रेप्स कीवी आ गया, बट उसने किसी को रिप्लेस नहीं किया, तो यहां जो मैंगो था वो आगे शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से जब आप लोग लेंथ 0 देते हो तो इट डज द वर्क ऑफ इंसर्ट। याद रखना, लेंथ अगर 0 दिया है, इट डज इंसर्ट। एंड व्हेन यू डोंट गिव एनी रिप्लेसमेंट, कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं दिया है, okay, then no replacement, then it does the work of deleting, okay, delete का काम करता है। एंड रिप्लेसमेंट भी दिया है, लेंथ भी दिया है, तो रिप्लेस काम करेगा, इट विल रिप्लेस। देखो अभी यहां वन से लेके कितने एलिमेंट्स मैंने कहा? टू एलिमेंट्स, फ्रॉम वन टू एलिमेंट। तो दिस इज योर न्यू मॉडिफाइड अरे, जीरो। कहां तक? वन से टू एलिमेंट। वन से टू एलिमेंट मीन्स ये दोनों, और उसको रिप्लेस किससे किया है? बनाना। करें? तो अभी नया अरे क्या बनेगा? एप्पल, बनाना, मैंगो। करें? तो स्प्लाइस के तीनों कॉम्बिनेशंस याद रखना। क्या क्या याद रखोगे? कि स्टार्ट एंड लेंथ दिया है, नो रिप्लेसमेंट, देन इट विल डू द वर्क ऑफ डिलीटिंग। स्टार्ट, रिप्लेसमेंट दिया है बट लेंथ 0 दिया है, इट विल डू इंसर्टिंग। एंड तीनों दिया है, मैंने लेंथ भी दिया है, रिप्लेसमेंट भी दिया है, तो क्या करेगा? रिप्लेस का काम करेगा। तो जनरल रूल बना दो स्प्लाइस का। क्या रूल याद रखना है? दैट वेन एवर यू गिव, अब यही एग्जांपल लेते हैं नेम्स का, अभी करंट नेम्स ये, ठीक है। नाउ आई एम राइटिंग नेम्स डॉट स्प्लाइस एंड आई एम राइटिंग 1,3 सपोज। अब 1,3 मीन समझ रहा है ना? 0 1 0, ये 1 है। 1 से कितने एलिमेंट? 3 एलिमेंट। 3 लेंथ है गाइस, 3 इज लेंथ। तो 3 एलिमेंट्स, और रिप्लेस किसी से भी नहीं कर रहे हो, तो क्या करेगा? डिलीट का काम करेगा। तो याद रखना है, स्टार्ट एंड लेंथ दिया है बट रिप्लेसमेंट नहीं दिया है, तो इट विल डिलीट। सी, ये 3 एलिमेंट निकल जाएंगे और अभी आपके अरे में सिर्फ राम एंड भरत रहेगा। करेक्ट? और वो डिलीटेड पार्ट जो है वो आपको रिटर्न किया, इतना डिलीटेड पार्ट था वो रिटर्न हुआ। यू कैन चेक नेम्स, देखो उसमें वो उतना पार्ट डिलीट हो गया, तो नाउ यू हैव ओनली राम एंड भरत। Getting? And if you are giving, okay, splice, you are giving the start, but the length is 0, and elements you are giving. Getting? जैसे मोहन दिया है, गोपाल दिया है, माधव दिया है, चैतन्य दिया है, ठीक है। एलिमेंट्स कितने भी देने दो, बट लेंथ नहीं दिया, लेंथ 0, इट विल डू इंसर्टिंग। तो कितने एलिमेंट रिप्लेस हो रहे हैं? 0 एलिमेंट। तो देखो राम इस 0 पोजीशन, 1 पे भरत है, तो उस प्लेस पे कितने एलिमेंट रिप्लेस हो रहे हैं? 0 एलिमेंट आर रिप्लेस्ड विद दीज। तो ये 4 आ जाएंगे वहां, और वहां जो भरत था वो आगे शिफ्ट हो गया। देखो, कैन यू सी? उधर जो भरत था वो आगे चला गया और उस जगह पे ये 4 वैल्यूज आ गए। तो क्या याद रखना है? स्टार्ट दिया है, रिप्लेसमेंट दिया है, बट लेंथ 0 दिया है, इट डज इंसर्ट। एंड एलिमेंट भी दिया है और लेंथ भी दिया है, देन इट इज गोइंग टू डू रिप्लेसिंग। देखो जैसे नेम्स डॉट स्प्लाइस, ठीक है, आई एम गिविंग 2,2, 2,2 दे रहा हूं, एंड यहां मैं सपोज योर नेम्स, ओके, आई पुट माई नेम ऑल्सो। हाउ मेनी एलिमेंट्स? 3 एलिमेंट, बट इधर तो 2 ही एलिमेंट है, तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि जितने एलिमेंट है उतने ही यहां होने चाहिए। बट अगर आपने रिप्लेसमेंट भी दिया है, लेंथ भी दिया है, तो इट इज डूइंग रिप्लेसिंग। तो 0 1 2,
टू पे कौन है? गोपाल। वहां से कितने एलिमेंट? सी गाइस, स्टार्ट फ्रॉम टू एंड लेंथ इज टू, तो 0 1 2, और वहां से टू एलिमेंट, ये दो एलिमेंट, ये तीन एलिमेंट से रिप्लेस हो जाएंगे। करेक्ट? तो नाउ जितना पार्ट रिप्लेस हुआ है उसने रिटर्न किया, ये दो वैल्यूज, ये तीन वैल्यूज से रिप्लेस हुआ, तो जो पार्ट रिप्लेस हुआ है वो रिटर्न किया। एंड नाउ इफ यू चेक नेम्स, कैन यू सी, वो गोपाल एंड माधव, ये तीन वैल्यू से यहां रिप्लेस हो चुका है। तो एक जनरल रूल बना दो गाइस, दैट व्हेन द स्टार्ट एंड एंड इज देयर, सॉरी, स्टार्ट एंड लेंथ इज देयर बट नो रिप्लेसमेंट, इट विल डू डिलीट। Start is there, replacement is there, but length is zero, it will do insert. And when length is also there and replacement is also there, it will do replace. तो एक ही चीज से, एक ही स्प्लाइस फंक्शन से तीनों काम किए। क्या तीन चीजें किए हमने? इंसर्ट भी किया, डिलीट भी किया, रिप्लेस भी किया। ओके, ठीक है? तो आई होप इट इज क्लियर. Now, some few more things are there related to array, which we'll be discussing in the next session. And after learning all the methods of array, then we will solve some programs also, some exercises based on arrays.